لیکن یہ ہے کہ پیٹرول ضرور ٹینکی فل کرا کے رکھیں اسٹور سے پہلے، اور کھانے پینے کی چیز ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ اسٹور کے پورے رستے میں نہ کوئی کھانا ملنا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی پیپسی بوتل اگر شام ہو گئی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آپ کو اس نئی ویڈیو میں بہت سی خوش آمدید۔ اچھا جی دوستو، لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ دوست جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے استول میں راما کی طرف نکل گئے تھے۔ پلان تو ہمارا تھا جانے کا چلم چوکی کی طرف، منی مارکیٹ کی طرف، لیکن کیونکہ دوست جا چکے تھے اور ان کو پرابلم آئی کہ پیٹرول ان کا ختم ہو گیا تھا، تو ان کی ہیلپ کے لیے ہمیں جو ہے وہ ادھر آنا پڑ گیا۔ دوستوں کے پاس پہنچنے کے بعد اپنی موٹر سائیکلوں سے ہم نے پیٹرول نکال کے ان کی موٹر سائیکلوں میں ڈالا تاکہ جو ہے نا آگے کا سفر جو ہے وہ کنٹینیو کیا جا سکے۔ تو چلتے ہیں راما میڈوز کی طرف۔ روڈ کنڈیشن دیکھتے ہیں، راستے میں جو ویوز آئیں گے وہ دیکھیں گے ہم، اور دیکھتے ہیں کہ راستہ کیسا ہے، کتنا ٹوٹا پھوٹا ہے، گاڑی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ راما میڈوز تقریباً یہاں سے 3 کلومیٹر رہ گیا ہے، تو روڈ کی کنڈیشن یہاں پہ کافی اچھی ہے۔ استور سے نکلتے ہوئے روڈ کی کنڈیشن بہت بری تھی، سلپ کرنے والا روڈ تھا، مٹی تھی روڈ کے اوپر اور کنڈیشن بہت ہی خستہ تھی، اور موٹر سائیکل کا بہت ہی زیادہ زور لگ رہا تھا وہاں پہ۔ تو یہاں پر اس حساب سے تو روڈ کنڈیشن بہت اچھی ہے، اور موسم بھی بڑا کمال قسم کا ہے یہاں پہ۔ حالانکہ آسمان کلیئر ہے، سورج نکلا ہوا ہے، لیکن بالکل بھی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور ارد گرد کی گرینری جو ہے وہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی لطف اندوز کر رہی ہے۔ اللہ کی قدرت ہے نا، درخت چیک کریں ذرا آپ کہ اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں اور وہ کھڑا کہاں پہ ہوا ہے، زمین سے ہٹ کے اوپر نکلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بھائی تھوڑا سا راستہ دے دو ہمیں گزرنے کے لیے۔ یہاں پہ روڈ کنڈیشن کافی اچھی ہے، لیکن میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کار پہ آئیں یہاں پہ، سٹی یا کرولا وغیرہ، کیونکہ یہاں پہ پہنچ کے راستہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم گزر کے آئے ہیں اسٹور سے یہاں تک، وہ راستہ کافی خراب ہے، تو میرے حساب سے تو کار پہ آنا مناسب نہیں ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ دیکھیں جی، روڈ بنا ہوا ہے اور درخت نہیں کاٹا، روڈ بنا دیے ارد گرد، لیکن درخت وہیں کا وہیں ہیں۔ یہ ہی نیچر کو سنبھالنے والے معاملات ہیں کہ نیچر بچتی بھی تبھی ہے جب اس طرح کے عمل کیے جائیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں راما میڈوز پہنچ گیا ہوں، یہ آگے دوست کھڑے ہیں سارے۔ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، گرینری ہے ہر طرف اور فریش ہوا ہے، اور بہت ہی مزے کی جگہ ہے۔
असा भाई क्या कर रहे हैं आप? फोटो ले रही है तो साथ खड़े हुए ना, उसके साथ खड़े हुए। आए हाय हाय, मेरे भी चलेगा। बाकी मेरे ख्याल से आगे जा चुके हुए हैं। अरसलान यहाँ पे खड़ा था, सेल्फियाँ ले रहा था। वाह जी वाह, पहुँच चुके हैं हम रामा मेडोस। ये सामने नज़ारा आ रहा है मेडोस का। रोड यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है, कंडीशन रोड की ख़राब है। पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं और मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन जो सामने नज़ारा नज़र आ रहा है ना, उसको देख के तो ये चीज़ें भूल जाती हैं, और जो हम गुज़र के हैं वो भी सारा कुछ भूल गया। माशाल्लाह लश ग्रीन मैदान है, ग्रीन दरख्त हैं और बड़े बड़े दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से व्यू आ रहा है। सर ये ऊंची जगह है लेकिन खूबसूरत तरीन जगह। अच्छा, जो लोग उस तौर से दुसाई मिनिमल चले जाते हैं, इसको मिस कर देते हैं, तो बेवकूफ़ी करते हैं। अच्छा, आना चाहिए एडवेंचर, खूबसूरती। अगर घर से देखने आए हैं तो सारी देख के जाएं। ठीक है, चले आगे देखते हैं। आगे रामा लेक पे जा रहे हैं, कोई से खूबसूरत जगह है जहाँ से मुर्शिद के दीदार भी होते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाएंगे, मुर्शिद के दीदार करेंगे। चले फिर बिस्मिल्लाह करें। मुर्शिद मतलब के नागा पर्वत, टूरिस्ट जो है वो मुर्शिद जो है नागा पर्वत को कहते हैं। मिट्टी मिट्टी उड़ा रहे हैं। चले हम यहाँ पे 2 मिनट रुक जाते हैं ताकि ये मिट्टी जो है ना, इससे जान छूट जाए हमारी। काफ़ी घना जंगल है ये, बहुत घना जंगल है ये। ओ तेरी खैर, वो ट्राली आ रही है, इसने बड़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ानी है। ओ तेरी खैर, मौसर यार फंस गई है तू, तेरे ते पनी सारी मिट्टी। हम रास्ता ही बदल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
आप सफाई कर रहे हैं? वेरी गुड। ये जी भाई हैं जो कि सफाई कर रहे हैं यहाँ इस जगह की। हम जैसे टूरिस्ट जब जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कचरा फैलाते हैं, लेकिन ये अपने एरिया को बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं। कचरा वगैरह नज़र कहीं पे भी नहीं आता क्योंकि ये उठा लेते हैं। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जब भी जाएं ऐसी जगह पे घूमने फिरने के लिए तो साथ में एक शापर रख लिया करें। कचरा जो भी हो उस शापर में डाल दिया, और जहाँ पे आपको डस्टबिन वगैरह नज़र आए तो वहाँ पे डाल दें, तो एरिया भी साफ़ रहता है और महज़ब पाकिस्तानी जो है वो भी बन जाएंगे। जी मैं पहुंच गया हूँ। ये है रामा ग्लैम्पिंग रेजर्ट। खैमे लगे हुए हैं यहाँ पे। होटल वगैरह तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो खैमे वगैरह कैंप वगैरह लगे होते हैं। तो कैंप में ही जो है स्टे करना होता है। जो भी टूरिस्ट आते हैं आगे लेक पे जाना होता है तो वो अपना सामान वगैरह यहाँ पे रख के तो यहाँ से जीप लेके जाते हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर देते हैं और यहाँ से जीप जो है वो रामा लेक की तरफ जाती है। ले जी मैं पहुंच चुका हूँ रामा अपने मुकाम पे जो हमारी डेस्टिनेशन थी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्त कहाँ पे खड़े हैं, उनको ज्वाइन करते हैं हम। नहीं है किचन पूरा अपने कोल है साढ़े वाले, फिर आना पड़ेगा नीचे। बिजली का इंतजाम है हर चीज का। सर उतने ना फाइनल है यार, वापस आ जाएंगे। फैसला कर लो, मैं नमाज पढ़ लूं। अच्छा शेख साहब, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्या फील किया आपने? कोई मसाइल आपको आए हों या कोई आप बताना चाहे कि यहाँ पे आते हुए ये वाली सेफ्टी ज़रूरी है, ये काम करने ज़रूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर तक तो कोई मसला नहीं है। स्टोर तक जरा ऑफ रोडिंग थोड़ी सी है, चढ़ाई है, लेकिन ये है कि पेट्रोल जरूर टैंकी फुल करा के रखें स्टोर से पहले। और खाने पीने की चीज हमेशा साथ रखें। स्टोर के पूरे रास्ते में ना कोई खाना मिलना है और ना ही आपको कोई पेप्सी बोतल, अगर शाम हो गई है तो पानी भी नहीं मिलेगा। पानी भी नहीं मिलेगा आपको। कैंटीन कोई सब बंद है, या फिर रात को 6-7 बजे बंद कर दें। मतलब जो लोग बाबूसर से आ रहे हैं चिलास क्रॉस करके, तो आप का मतलब है कि वो दिन दिन में स्टोर पहुंच जाए? बिल्कुल, दिन रात का सफर ना करें। आपको यहाँ पे सारी चीजें बंद मिलेंगी। ये लोग जल्दी सो जाते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। अच्छा, लिहाजा आप अपने पास अगर रात का सफर करना है टैंकी फुल रखें। लाइट एक मोटरसाइकिल पे एक्स्ट्रा लगवा के रखें और साथ हमेशा खाने पीने का सामान और पानी जरूर रखें। वेरी गुड। अच्छा, ये अब यहाँ पे कैंप का अरेंज हो रहा है? ये इससे ऊपर जाता है रास्ता। अच्छा, रास्ते में कैंप लगे हुए हैं। ये कैंप अच्छे हैं क्या? अच्छा, मस्जिद में इंतजाम है, कैंप है, लाइट लगी। ये इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है? ये मस्जिद बनी हुई है जी, ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। और जो आपने कैंप का पता किया वो कौन सा है? कैंप चेक करिए, बेहतरीन मजे का कैंप है। वाह, अंदर तो बेड भी लगा हुआ है। बेड, मैट्रेस, सारा कुछ लगा हुआ है, बल्कि इलेक्ट्रिक का इंतजाम भी है। और आज रात मजा की होने वाली है। म्यूजिक का इंतजाम इधर मच लगा के यहाँ रात को बहुत ठंड। सर अब जो नेक्स्ट प्लान है ना, और अभी तक जो आपने चीज नहीं देखी मैं आपको दिखाऊं, वो सामने देखें क्या बैठा है। वीडियो बनाया। वाह, ये चीज तो हमने देखी नहीं अभी तक। ये बंधा हुआ है कि खुला हुआ है? ले जी, यॉक भी देख ले। यॉक वाइट कलर का।
इससे आगे जो प्लान है वो जाने का है रामा लेक की तरफ। और यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो बता रहे हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल है, बाइक भी बड़ी मुश्किल जाती है और जीप भी नहीं जाती है। यहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा और यहाँ जो है वो आपको घोड़ा वगैरह लेके तो उस पे सवार होके जाना पड़ेगा। लेकिन हमने जो डिसाइड किया वो डिसाइड यही किया है कि हम बाइक्स पे ही जाएंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम ट्रैवल करेंगे रामा लेक की तरफ, रामा मेडोज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।